युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। संसार के सबसे सुंदर देशों में से एक है न्यूजीलैंड। यहाँ की शुद्ध आबोहवा और शांत प्रकृति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय संस्कृति की सुवास फैली अश्वमेध महायज्ञ के माध्यम से। देश विदेश में भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु अश्वमेध यज्ञों की भूमिका से सभी परिचित हैं। इसी श्रृंखला का 37वां प्रकरण न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में संपन्न हुआ। युग प्रवाह के इस अंक में देखते हैं कि कैसे भारत के ज्ञान आलोक से संसार का कोना कोना प्रकाशित होने जा रहा है। Auckland, the largest city of one of the world's most beautiful countries, New Zealand, is known as the City of Sails. This city was chosen as the venue for the 37th Ashwamedh Mahayagya, a part of the worldwide Dev Sanskriti Digvijay Abhiyan, held under the auspices of All World Gayatri Parivar, Shantikunj Haridwar. वैदिक ऋषियों की राष्ट्र संबंधी अवधारणा बड़ी विराट रही है। उन्होंने राष्ट्रम वा अश्वमेधः कहकर पूरे विश्व को एक ही धर्म, एक ही संस्कृति और एक ही शाश्वत मान्यता के सूत्रों से जोड़कर भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं गायत्री और यज्ञ, अर्थात सद्ज्ञान और सत्कर्म। इसी संस्कृति को पुनः विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माता भगवती देवी शर्मा जी के सूक्ष्म संरक्षण में संचालित देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का सूत्रपात किया गया। Preparations for the event began 1 year in advance, led by the Gayatri Parivar fraternity of New Zealand. This consists of members from Auckland, Wellington, Hamilton, and Brisbane. After the arrival of a senior team from Shantikunj in the second week of January, preparations gathered momentum. The Yagya ceremony that is going to be held here, we are going to have 351 Havan Kunds here in this big tent. As I said earlier, we are expecting 10 to 15,000 people to flow through here, and there is a great response that we are receiving. A team of volunteers from all over the country donated their time and resources, preparing and sanctifying the venue for the Yagya
auspicious ceremony informally began on the 25th of February with the arrival of the present guides of All World Gayatri Parivar, Shraddheya Dr. Pranav Pandya ji and Shraddheya Shailji ji, who received an official welcome from the mayor of Manukau, Mr. Lan Brown. Te Mangere te Moana, te Manukau te Maunga, no reira tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I want to welcome you on behalf of the people of Manukau. I have acknowledged the people of this land, the Māori people, the iwi people of this land. I have acknowledged all of those who are here. I have acknowledged our mountain, which is called Mangere. You have landed in Mangere. I have acknowledged the Manukau harbour that you flew over. And I have also acknowledged that I am the mayor of this city and the leader of this land, and I've welcomed you. On the bright morning of February 27th, the Shankhnad of the Ashwamedh was heard clearly and loudly to announce the Grand Kalash Yatra. अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ Representing the power of 21st century women, hundreds lifted the Kalash, a symbol of purity and perfection. The procession finished at the Yagya venue near Mount Smart Stadium, and the rituals of the Ashwamedh Gayatri Mahayagya began. O dharma ki pataka, fehro dhara gagan mein, udti ho gandh bhini, jo dur tak chaman mein. O dharma की पताका फहरो धरा गगन में,
today who performed with us the flag hosting ceremony. We have got Honorable Pansy Wong. She is representing the Prime Minister of New Zealand. Let us welcome her by clapping. We have got with us Dr. Rajendra Prasad, who happens to be a member of Parliament and the leader of opposition amongst us. He is with us, Dr. Rajendra Prasad. We have got with us Mr. Sam Vitulinga. We have got with us Dr. Jackie Blue and Honorable Justice Ajit Singh. All of us welcome him. On behalf of the Prime Minister and Government of New Zealand, can I congratulate you all to have a successful 2 days of this auspicious occasion. And I want to welcome Dr. Panya all the way and your contingent. Some actually come from Britain. But first of all, I also want to acknowledge my colleagues from Parliament. This day is very important for the Indian, particularly the Hindu community, but the support from other community and religious background is a show of in New Zealand. We actually respect religious freedom, but more important, we respect each other and support each other. Once again, it's a real privilege to be here joining you for a short while, but I'm sure that you will have a very fruitful and successful 2 days. And we are proud that in New Zealand, we are the first time of the visit of Your Holiness, and I hope that you will make a return trip, judging from the warm response and the wonderful gathering here today. Thank you. Once again, welcome. Dr. Pranab ji, भाइयों बहनों सज्जनों आप सबको नमस्कार. My colleague and friends from Parliament, Honourable Pansy Wong, और सब स्वामी जी, सब आचार्य जी और सब community leaders, आप सबको प्रणाम और नमस्कार. आज बहुत भारी याग है. जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता रहेगा, तब हमारे संस्कार बहुत बड़ा रहेगा. और मुझे बहुत खुश है कि आज हमारा बच्चों भी कुछ सीखेंगे. और ये जो पहला बार ऐसा होता है न्यूजीलैंड में, ये देश के लिए, हमारा परिवार के लिए और हम लोग सब लोगों के लिए ये कितनी भारी बात है. और जो आप लोग आए हैं भारत से, सब बहुत भारी धन्यवाद है सब न्यूजीलैंड की तरफ से. On this very special occasion, it's very special because many people go through their lives and don't experience what is going to happen here for the next 3 days. Let us all pray to Ma Gayatri that she gives you wisdom, righteousness, pure knowledge, and you keep on serving the society like this forever. गुरु ईश वंदना. इस महान यज्ञ के संरक्षक, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को नमन करते हुए हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं. सभी याजक साधक अपनी भावनाओं को वंदना के साथ जोड़े रहें. लौकिक मंत्र, गे स्वर, विलंबित गति. Others try to focus your mind. परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्. मंगलाचरणम. अपने मंगलमय आचरण का संकल्प व्यक्त करते हुए
देव शक्तियों को सहयोग के लिए शंख निनाद के साथ आमंत्रित करें। ॐ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दधासो अपरीतासौभिदः देवानो यथा सदमिद्गृधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। अगले क्रम में इस महान अश्वमेध महानुष्ठान की विधिवत घोषणा परम श्रद्धेया जी के श्रीमुख से होने जा रही है। सभी ध्यानपूर्वक सुने। अश्वमेध महायज्ञ ऑकलैंड। राष्ट्रम व अश्वमेध वीर्यम व अश्व। आस्था संकट की बेला में जब चारों ओर अशांति छा जाती है, तरह तरह के सामाजिक विग्रह पनपने लगते हैं एवं नाराज प्रकृति अपनी नाराजगी मौसम के असंतुलन एवं आदि व्याधि के बाढ़ के रूप में दिखाती है, तो भारतीय ऋषि अश्वमेधिक प्रयोगों को करने का निर्देश देते हैं। इनमें वैज्ञानिकता का समावेश है ताकि दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदले एवं विश्व विनाश रुके। इस महायज्ञ के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। देवावाहनम। भाइयों बहनों, ये जो कार्यक्रम है ये जिस गुरु सत्ता की कृपा से संभव हो पा रहा है, हम और आप निमित्त मात्र हैं। ये सारा कार्यक्रम उन्हीं की कृपा से है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी, उन दोनों ने ही इतना तप किया, प्रबल पुरुषार्थ किया कि आज सारे विश्व में गायत्री परिवार फैला हुआ है। आज हम गुरु तत्व का पूजन देव पूजन के अंतर्गत कर रहे हैं। हम गुरुदेव माता जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपके सामने तो स्मारक लगे हुए हैं। प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा। प्रखर प्रज्ञा यानी गुरुदेव, सजल श्रद्धा यानी माता जी, दोनों का एक सिंबल है और इसी के नाम पर पूरी की पूरी शांति को इनमें समाधि बनी हुई है गुरुदेव की, उसी का ये सिंबल है जो सामने रखा हुआ है। हम यहाँ पर देव सत्ताओं का आह्वान कर रहे हैं, गुरुदेव का आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमें शक्ति दें, हमें आपकी कृपा बरसाएं, हम पर बरसाएं और हमें ऊंचा उठने की शक्ति दें, हमें सही मार्ग पर चलना सिखाएं, क्योंकि हम कभी कभी भटक जाते हैं। हमें भटकाव से रोकें और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदमाता देवमाता, वेदमाता देवमाता, विश्वमाता को नमन। वेदमाता देवमाता विश्वमाता को नमन। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अश्वमेध का मतलब होता है आसुरी वृत्तियों को समाज से उखाड़ फेंकना। अश्व
लोग जानते हैं अश्व यानी हॉर्स, हॉर्स यानी चंचल वृत्ति वाला। चंचल वृत्ति वाला जो आज समाज हो गया है, उसकी चंचलता को मिटा करके और अच्छाइयों को बिठाना, जीवन हमारा यज्ञमय हो जाए, हर श्वास परमात्मा के लिए समर्पित, हर जीवन का हर कर्म परमात्मा के लिए समर्पित। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस यज्ञ में बैठे हैं, और इस यज्ञ में बैठ करके आप यज्ञ के एक प्रकार से उन अनुदानों का लाभ ले रहे हैं जिन अनुदानों के माध्यम से आपका जीवन सौभाग्य में बनने जा रहा है। अश्वमेध, अश्व यानी विज्ञान, मेध यानी अध्यात्म, अश्व यानी साइंस, मेध यानी स्पिरिचुअलिटी। विज्ञान और अध्यात्म का मिलन कहलाता है अश्वमेध। दोनों मिलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी प्रिवेल करेगी, और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी प्रिवेल करेगी, सारे संसार में वैज्ञानिकता का प्रसार होगा, वैज्ञानिक अध्यात्म का प्रसार होगा, वैज्ञानिक संस्कृति का प्रसार होगा। दिस इज़ व्हाट वी आर कंटेम्पलेटिंग टू। ये हमारा मेन फोकस इस पे है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य से आने वाली किरणें और सारी पृथ्वी पर, न केवल न्यूजीलैंड की धरती पर, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, बल्कि जो आज ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है उसकी वजह से जो संसार में आपदाएं आ रही हैं वो मिटें, लोग अपने आसपास के क्षेत्र का संतुलन बनाना सीखें और इकोसिस्टम के साथ बैलेंस में रहें। ये अश्वमेध की प्रेरणा है। यज्ञाश्व प्रवेशः। बहनों और भाइयों, ये यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी यज्ञाश्व को लेकर यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। सभी बैठे रहें, सभी बैठे रहें, कोई नहीं उठेगा। धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्राहुतिः। We now offer into the yajna fire oblations of Havan Samagri, one with each chanting of the Gayatri mantra. While we do so, we meditate on the essence of Gayatri mantra. O Lord, direct me on the path of righteousness. I completely surrender myself in soul, mind and body to your will. Sit straight, be emotionally calm and perform the ritual with full devotion. वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। A cultural program
following this showcased India's rich and diverse cultural heritage and was followed by a deep Mahayagya in the evening. All the brothers and sisters, we are going to witness the cultural program. Many times cultural program, they comprise of varieties of the shows. Sometimes the filmy songs are sung and we all appreciate and we start saying, ooh, ooh, everyone starts saying, shouting. This is what is a culture which has developed in various countries about India. Sanskriti is culture. And in culture, there is something which is very special. संस्कृति में सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये कि संस्कृति का मतलब केवल नाच गाना नहीं है. संस्कृति का मतलब है लाइफस्टाइल को एक तरह से संस्कृति में बनाना, अम्बल बनाना, पोलाइट बनाना. संस्कृति मतलब अपने अंदर गुणों की खेती करना. कल्टिवेटिंग द गुड क्वालिटीज इन योर डे टू डे लाइफ इज संस्कृति. अनफॉर्चुनेटली टुडे संस्कृति इज नोन ओनली बाय सांस्कृतिक कार्यक्रम. I want to clarify one point, that always worship our culture. Never make it a show. हमेशा अपनी संस्कृति की पूजा करो. संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति. भारत हमारी भारतीय संस्कृति में हम अपनी संस्कृति को अपनी माता कहते हैं. वेस्ट में सिविलाइजेशन है पर कल्चर नहीं है. भारत में केवल कल्चर है, भले सिविलाइजेशन में धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे. इसलिए भारत को ये मान के चलो कि भारतीय संस्कृति सबसे महान संस्कृति है. सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा. ये पहली संस्कृति थी, यजुर्वेद कहता है, जो सारे विश्व में फैली और हमेशा फैलती रहेगी. नमस्ते, कियोरा, गुड इवनिंग एवरीवन. गायत्री परिवार न्यूजीलैंड के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस अश्वमेध महायज्ञ 2009 के उत्सव में आप सबका स्वागत है. ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. Thank you very much. Big round of applause for Indians. दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे. Thank you.
सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। The event continued on the 28th of February with Mantra Diksha and Yagya in the morning and seminars and workshops in the afternoon. Seminar topics included scientific spirituality, female empowerment, and the art of living. Spiritual attitude is the most effective preventive and remedial measures against all kinds of problems and stresses in works. This is what is my attitude, and I imagine that stress originates from self. Because of the spiritual faith, the roots which are diseased, we get the problems in the mind. Mind means the varieties of the disorder, psychosomatic disorder. आइए आज के इस दीप यज्ञ के कार्य को प्रारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म सभी पवित्र हों। भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, हमें भगवान के सिद्धांतों को जीवन में उतारना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशेत्, संविशेत्, अग्निस्थापनम्। ओम अग्नेनाय सुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, युयोध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। गायत्री स्तवनम, गायत्री महामंत्र का देवता सविता है और उसी सविता सूर्य के कारण पृथ्वी पर जीवन है। यहाँ पर हिंदी के श्लोक बोले जाएंगे। पावन बना दो हे देव सविता, ये आप सभी लोग दोहराएंगे। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है, नया युग चला 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 रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है। राम राज धरती पे फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो, ये नया युग चला रहा है। चलो करें स्वागत चांदी सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है। बोली यज्ञ भगवान की जय। बोले गायत्री माता की। गायत्री मंत्राहुति, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम देवदक्षिणा पूर्णाहुतिः। पूर्णाहुति का मतलब होता है पूर्ण आहुति, परफेक्शन, टू अचीव परफेक्शन इन लाइफ। वी आर इनकम्प्लीट, वी आर ए पार्ट ऑफ द सुप्रीम बीइंग, बट वी आर इनकम्प्लीट। हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, और परमात्मा हमें चाहता है कि हम पूर्ण बने, इसीलिए हमें जन्म मिला है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको धरती पे क्यों भेजा गया, तो धरती पे इसलिए भेजा गया है कि हम पूर्ण बने। पूर्ण बनने के लिए हमें कमियां दूर करनी पड़ेंगी, गलतियां दूर करनी पड़ेगी, दोष प्रवृत्तियां, दुर्गुण, जितनी भी हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। आज एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रयोग हुआ है, समूह चेतना का। सुबह आपने यज्ञ किया, हर एक के पास एक यज्ञ कुंड था, 3-4 लोग बैठे थे, आहुति डाल रहे थे, हाथ में आहुति ली स्वाहा के साथ, पर इसमें तो कोई आहुति नहीं डाली, इसमें तो दीपक जल रहे थे, सब कुर्सियों पे बैठे थे या अपने अपने स्थान पे बैठे थे। कैसे आहुतियाँ दी? भावनात्मक आहुति। योर ऑल इमोशनल वर्च्यूज़ दे नीड टू बी एक्साल्टेड, और उस इमोशनल वर्च्यूज़ के माध्यम से एक पॉजिटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यहाँ पर पैदा हुई है। सब जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, approximately I assume 6,000 to 7,000 persons who are present here, you all have done a combined mind process together. अब एक हमारा समूह मन बन गया। हमारे साथ साथ बोलेंगे, हम अपना अपना नाम बोलें मनी मन। भगवान महाकाल की साक्षी में, भगवान महाकाल की साक्षी में, यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में, यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि, यह संकल्प लेते हैं कि अपनी बुराई को आज से छोड़ते हैं, नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, जब के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने के लिए, श्रेष्ठ साहित्य का स्वाध्याय, मनन चिंतन सत्संग नियमित रूप से करते रहेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाते हैं। मंत्र बोला जा रहा है, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर रहने दीजिए। मंत्र के साथ भावना करिए, हम पूर्ण बन रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। One very important assembly took place after the Purnahuti, the establishment of the New Zealand, Australia and Fiji chapters of DIA, Dev Sanskriti University's International Youth Initiative. DIA has been launched on 30th January, just the eve of Vasant Panchami in Shantikul. What does DIA stand for? Do you know it? DIA, D-I-Y-A, Divine India Youth Association. DIA abroad, New Zealand, Australia. We are going to form today. And this is a non-government, totally secular, spiritualistic organization which will be working for the betterment of the youngsters. How we can be utilized in a proper way, how
we can associate ourselves for the spiritual development of the whole globe. That is what is the main motto behind